پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں آج شب پھر یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے، اور خداوند کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آج پھر ممکن ہوا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس کی گئی پرستش کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہوں، اور اب آپ کے ساتھ مل کر اس خداوند کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے والا، برکت پانے والا اور حوصلہ پانے والا ہوں۔ روح القدس میری اور آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے، اور آج وہ مجھ سے اور آپ سے بات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پس آئیے ہم اپنے کان خدا کے کلام کے سننے کے لیے کھول لیں، اپنے ذہن اس کلام کے سمجھنے کے لیے، اور اپنے دل اس کلام کو قبول کرنے کے لیے، اور یقیناً آج کا کلام ہم میں سے کسی نہ کسی کے لیے ضرور حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ اگر آپ اپنے حالات میں انتہائی پسماندگی محسوس کرتے ہیں، پریشان حال ہیں، مشکل اور کٹھن سفر ہے زندگی کا، تو پھر آج کا کلام میرے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا بابرکت ٹھہرے گا۔ ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، 55 زبور پر ہیں، 55 یعنی 55 زبور پر، اور اس کی پہلی 8 آیات پر آج میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا، اور استاد ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاک روح، اور وہ میری اور آپ کی ضرورت کے عین مطابق آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس زبور کا ٹائٹل کچھ یوں ہے، پہلی آیت سے بھی پہلے ایک تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی دعا ہے جس کے اپنے رفیق نے اس کو دھوکہ دیا ہو، فریب دیا ہو، یعنی یہ زبور 55۔ اور ہاں، ہم زبور 55 گاتے بھی ہیں، ہنتے میں یہوہ آگے دیواں گا دہائی، وہی والا زبور۔ لیکن جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو اس کا ٹائٹل کچھ یوں ہے کہ میرے مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکیل۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ داؤد کے وسیلہ سے، جو داؤد نبی، داؤد بادشاہ ہیں، موسیقار اور خداوند کے پرستار اور ایک بڑے عظیم جنگجو، ہم داؤد سے متعلق سیکھتے ہیں کہ یہ زبور ان کا ہے، یعنی انہوں نے لکھا۔ لیکن لکھا کس کے لیے؟ میرے مغنی کے لیے۔ اور اس سے پہلے کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ میرے مغنی اس وقت اسرائیل کے جو خدا کے گھر میں پرستار ہوتے تھے، کوائر کا جو ڈائریکٹر انچارج ہوتا تھا، اس کے لیے بھی یہ نام فٹ آتا ہے۔ تاہم جو موسیقی کا موجد ہے اور پسند کرتا ہے، خدا بذات خود ساری پرستش اور عزت اور ستائش کے لائق وہ ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ داؤد نے اس کے لیے یہ زبور لکھا ہے۔ لیکن جب گایا گیا تو ایک ایسے ساز پر، کئی آلات موسیقی ہیں، اور جس آلہ پر، جس ساز پر یہ گیت گایا گیا وہ تاردار ساز تھا۔ مجھے معلوم نہیں کون سا، ہو سکتا ہے کہ وہ ستار ہوئی ہو سکتا ہے وہ ہارپ ہوا ہو،
हो सकता है बरबत या कोई और, मुझे मालूम नहीं, लेकिन तारदार साज के ऊपर गाने वाला ये एक जबूर है जो उस वक्त गाया जाता था। और इस जबूर की जो रूह है वो मेरी और आपकी जिंदगी पर बड़े एहसन तरीका से फिट होती हुई हमें नजर आती है। तो मैंने बता दिया है कि ये एक ऐसे शख्स की दुआ है, वो दाऊद ही है, जिसके अपने रफीक, जिसके अपने दोस्त ने उसको धोखा दिया। और याद कीजिए, इस जबूर के 3 पहलू हैं, 6 पहलू है, यानी मैं यूं कहना चाहता हूं कि 3 पहलुओं के एतबार से हम इसको सीख सकते हैं। एक तो दाऊद की अपनी जिंदगी से मुताल्लिक, जिसको धोखा और फरेब दिया गया। दूसरा, यह मसीहानिक जबूर है, क्योंकि मसीह खुदावन को भी एक अपने ही रफीक ने धोखा दिया। और नंबर 3, अगर हम आज अपनी जिंदगी पर गौर करें तो मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स हमारे जहन में हो, हमने मसीही होते हुए उसको माफ कर दिया हो, लेकिन कोई हमारा आस्तीन का सांप हुआ हो। पॉसिबल है, लेकिन जरा यह भी देखना है कि मैं कहीं किसी के लिए आस्तीन का सांप तो नहीं हूं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम आज इस कलील से वक्त में गौर करना चाहते हैं। किताब मुकद्दस में बुजुर्ग दाऊद खुदा से मुखातब होकर दुआ करते हैं, और आपने क्या कहा? ऐ खुदा, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत से मुंह ना फेर। दाऊद जब दुआ कर रहे थे तो आप खुदा से मुखातब होकर कहते हैं कि मेरी दुआ, मेरी बीनती, मेरी फरियाद पर कान लगा, सुन मेरी दुआ को, और मुझसे इस कर्ब और मुश्किल के वक्त अपने मुंह को ना फेर। क्या ऐसा ही खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में नजर नहीं आता? जब वो सलीबे कलवरी पर थे, कलाम मुकद्दस के मुताबिक यूं लगता है कि खुदा बाप ने भी अपना चेहरा मसीह के उस दुख को देखते हुए दूसरी तरफ मोड़ लिया। सबब यह था कि अगर मसीह खुदावन छोड़े ना जाते, चेहरा खुदा बाप दूसरी तरफ मोड़ ना लेता, तो फिर मेरी और आपकी रिहाई और मखलसी कैसे होती? और बाज औकात जब मैं और आप इंतहाई दुख और कर्ब के सहराओं में गामजन होते और रवा होते हैं, दुआ करते हैं, और बाज औकात यूं लगता है पता नहीं मेरी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती, पता नहीं खुदा मेरी दुआ पर कान क्यों नहीं धरता, पता नहीं मुझसे उसने मुंह फेर क्यों लिया है। मैंने पहले कहा था कि आज का कलाम इन बड़े 6 फेसबुक के पेजेस पर आप जो सुन रहे और देख भी रहे हैं, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल्स पर भी, और हमारी follow.jesus7 की स्काइप आईडी पर भी इस वक्त सुना जा रहा है। मैंने पहले कहा
کہ مجھ سمیت ہم میں سے کسی ایک کے لیے یہ وہ کلام ہے جو خدا آج کر رہا ہے اپنے پاک روح کی قدرت سے۔ میرے بھائی، شاید وہ آپ ہی ہے، میری بہن، شاید آپ ہی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری طرف سے اپنے منہ کو نہ پھیر، منہ نہ پھیر۔ اور پھر آیت 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ خداوند توجہ میری طرف کر، اپنا کن تو ادھر کر۔ کیوں میری آواز کو سنتا نہیں ہے؟ توجہ دے مجھ پر اور میری دعا پر اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں۔ اور یہاں یہ بے قرار ہو کر کراہنے کے لیے، رونے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اصل متن میں، وہ الفاظ ہیں جب کوئی ماں میٹرنٹی ہوم میں اپنے بیبی کو جنم دیتے ہوئے پینز اور درد محسوس کرتی اور وہ پکارتی ہے۔ داؤد گویا ایسے ہی کرب میں مبتلا ہے اور وہ یہ پکارتے ہیں کہ میں تیرے حضور غم سے، دکھ سے کراہتا ہوں، مجھے ٹھیس لگی ہے۔ اے خدا میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ آیت نمبر 3، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ کیوں میں غم میں کراہتا ہوں؟ ایک بات تو یہ کہ دشمن مجھ پر آوازیں کستا ہے، شاید ہم پر بھی کوئی آوازیں کس رہا ہو۔ نمبر 2، شریر مجھ پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں کراہتا ہوں۔ شریر ہوتا ہی ظالم ہے۔ اور نمبر 3، مجھ پر بدی لادی جاتی ہے۔ اور نمبر 4، اور اپنے قہر میں شریر مجھے ستاتے ہیں۔ یہ وہ سبب ہے کہ میں انتہائی کرب میں ہوں اور انتہائی تکلیف میں ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک معمہ، ایک پزل، ایک سوال کا جواب ہم ڈھونڈتے چلیں، وہ زیادہ آسان اور زیادہ بہتر ہوگا۔ داؤد کے برخلاف دشمن صف آرا تھا، اس کی مخالفت میں وہ کھڑا تھا، لیکن اس دوران داؤد کا آسرا اور بھروسہ خداوند یہوہ پر تھا۔ اسی لیے وہ خدا سے فریاد کرتا ہے۔ بشر راستے دکھا سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، تماشا بنا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے۔ لوگ فریب اور دھوکہ دے سکتے اور ستا سکتے ہیں، لیکن خدا کی ذات میں، اس کی نیچر اور اس کی فطرت میں ہماری بے وفائیوں کے باوجود وفاداری موجود ہے۔ اور داؤد اس وقت اپنے ایک رفیق کے سبب سے، اپنے ایک قریبی دوست کے سبب سے انتہائی دکھ اور
कर्ब में है, जो गोया दाऊद की आस्तीन का लगता है सांप बन गया। उसका नाम यहां पर मंदरज नहीं है कि वो कौन था, लेकिन यह बात मैं बताता चलूं कि उसकी बगावत के सबब से, अपने उस रफीक और दोस्त की बगावत के सबब से, अब जहां पर दाऊद था वो शहर भी खतरे में और वो खुद भी खतरे में, उसकी जिंदगी अब दांव पर लगी हुई थी। और ऐसे हालात में वो याहवे को पुकारता है, खुदा को पुकारता है कि वो मेरी इस मुश्किल वक्त में मदद करे। अब ये कौन होगा जिसकी बाबत हम यहां पर देखते हैं? उलमा के कई एक ख्याल हैं कि आखिर कौन था जो दाऊद के बरखिलाफ बगावत के लिए उतर आया। वो शख्स कौन था? उलमा एक ख्याल पेश करते हैं और वो ख्याल दूसरा सैमुअल यानी सैमुअल की दूसरी किताब और इसके 15, 16, 17, 18 इन 4 अबवाब में दाऊद के अपने बेटे का जिक्र है, अबी सलूम का, जो दाऊद के बरखिलाफ बगावत पर उतर आया और अपने बाप दाऊद की जान का खां था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दाऊद के जो मशीर थे उनमें से एक मशीर यानी सलाहकार जो बहुत ही दाऊद के करीब था, अखीतोफेल उसका नाम था, उसने भी दाऊद से बगावत की और अब अबी सलूम का साथ देना शुरू हो गया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त बुजुर्ग दाऊद के लिए यह कितना मुश्किल और कितना कठिन वक्त हुआ होगा, जब दाऊद अपने बेटे के हाथों भी इंतहाई दुख उठा रहे और कर्ब में है, और अपने एक दस्ते रास्त अखीतोफेल की बगावत के सबब से भी यूं लगता है उनका दिल छलनी छलनी हो गया था। यही बात तो कुछ देर पहले मैं कर रहा था कि ना सिर्फ ये दाऊद की बात है, बल्कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक भी है। हम यूहन्ना की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं इन दिनों, डेली रेगुलर। आप में से बहुत सारों के पास डेली व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह बाइबल स्टडी जाती है रेगुलर। शायद 5 सालों से कोई एक नागा भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह बताना चाह रहा हूं कि जब हम यूहन्ना 13 बाब का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे यहूदा ने खुदावंद यीशु मसीह से बगावत की। यह एक बहुत बड़ा लेसन है जो सीखने वाला वहां पर। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि इन आयात में हमारे लिए क्या है। जब दाऊद इस तरह की हिट लिस्ट में थे तो वो महसूस करते थे कि यूं लगता है जैसे खुदा मुझसे बहुत दूर है, वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, खुदा ने अपना चेहरा मुझसे छुपा लिया है। और दाऊद इस मुश्किल वक्त में यह महसूस करते थे, ओ मैं दुख में हूं, मैं कर्ब में हूं, मैं छोड़ा गया हूं,
अपनों ने मुझसे बगावत की, लेकिन ऐ खुदा मुझे तेरा साथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब छोड़ दे तो छोड़ दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ऐ पाक खुदा तू मुझसे जुदा हो। मुझे तेरी जरूरत है। सारी दुनिया मुखालफ हो जाए, बगावत करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर खुदा हमारा साथ ना दे तो देयर इज प्रॉब्लम। इसलिए हम यहां पर इस हकीकत को देखते हैं कि दाऊद गोया ये चाहते थे कि मुझे खुदा का साथ चाहिए, भले अबीसलूम और अखीतोफेल या कोई और क्यों ना हो, उन्होंने मेरे साथ क्या क्यों नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे खुदा की हजूरी और खुदा के साथ की जरूरत है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं आयत 4 से, तो बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं, मेरा दिल मुझ में बेताब है, यानी बेकरार, जिसमें कोई सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं है, परेशान हाल, और मौत का होल मुझ पर छाया हुआ है। यूं लगता है कि जैसे बस अब मैं लुकमाए अजल होने वाला हूं, मौत के धाने पर खड़ा हूं, डूबने को हूं, मेरी रूह निकलने को है, मरने वाला हूं। क्या कभी आपकी जिंदगी में अपनों और बेगानों के सबब से या कोई और वजह भी हो सकती है, कभी किसी ऐसे पॉइंट और नुक्ता पर पहुंचे जब आपको यूं लगे कि अब लगता है कि मैं मर जाऊंगा? ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको बताऊं, आपके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा का खादम होते हुए देनतदारी से मैं आपकी खिदमत में यह इकरार करूंगा कि बाज औकात, एक दफा नहीं, शायद चंदा मर्तबा मेरी जिंदगी में ऐसे हालात हुए, माजिए बईद में भी और माजिए करीब में भी, जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, वो जानते हैं। यूं लगता था जैसे अब मैं गया, लेकिन खुदा के हुजूर फरियाद करता रहा, खुदावंद आपकी रहमत मुझसे जुदा ना हो। हम खुदा से कुछ छिपा नहीं सकते, एक दूसरे से छिपा सकते हैं, लेकिन खुदा से नहीं। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ? यह बाइबल स्टडी हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा है। मैं खुदा का खादिम हूं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं रूहानी तौर पर महाजे जंग पे हूं और चारों तरफ से मेरा दुश्मन अबलीस गोलियां बरसाता है। उसने मशीन गन फिट की हुई है। जितना ज्यादा हम खुदाबंद की पैरवी में हो लेते हैं, उतना ही ज्यादा वो अपने वार हमले तेज कर देता है। वो टैंक्स और मशीन गन्स इस्तेमाल करता है।
अगर हम मसीह में हैं तो इस बात को ना भूलें कि हम उसकी हिट लिस्ट में हैं, और वो यानी इब्लीस हर मुमकिन तरीका से हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप में से कोई आज इस सिचुएशन में है, खुदावंद से कहें, खुदावंद आप मुझसे जुदा ना हूं, मुझे आपका साथ चाहिए। अगरचे मेरे अपने बीवी बच्चों अजीज रिश्तेदारों भाइयों बहनों का साथ है, वो हो या ना हो, खुदावंद मुझे आपके साथ और आपकी मदद की जरूरत है। ये बहुत अहम तरीन बात है। दाऊद यहां पर अपने बगावत करने वाले दुश्मन की शिकायत करते हैं खुदा के हुजूर कि मैं इंतहाई खौफ ज़दा हूं, ऐसी हालत में कि लगता है अब मेरी जिंदगी का दीप अब बुझने को है। और आप अंदाजा करें कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम और मुश्किल में मर्दे खुदा इस वक्त था जब उसने ऐसा लिखा। अब आयत 5, खौफ और कपकपी मुझ पर तारी हो गई, मुझ पर दहशत है, मुझ पर खौफ है, चारों तरफ से दुश्मन का भी बगावत करने वालों का भी हैबत ने मुझे दबा लिया है, दहशत मुझ पर आन पड़ी है। और आयत 6, और मैंने कहा काश के कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम पाता, इस शहरी दुनिया में, इस मतलब की दुनिया से निकल जाता और मैं कहीं बियाबान में चला जाता और वहां पर जाकर मैं रहता, जैसा वो यहां पर कहता है, अगर मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता, काश कि मैं किसी तरह से इस मुसीबत से निकल जाता और दूर बियाबान में चला जाता, जैसे साउल से बचने के लिए मैं बियाबान में था। और काश कि मैं किसी तरह बच सकता, लेकिन लगता नहीं कि मैं बच पाऊं। आप अंदाजा करें कि कितनी ज्यादा मुश्किल और कठिन जिंदगी में इस वक्त दाऊद हुआ होगा कि ये इस तरह की आवाज अपने सोच में और एहसासात में उसे सुनाई देती है। और वो सोचता था, मैं चाहता हूं यहां से चला जाऊं और ऐ खुदा वहां पर हूं जहां पर आपकी हजूरी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी हजूरी और आपके मसा की जरूरत है। आयत 7, फिर तो मैं दूर निकल जाता, अगर पर लग जाते तो मैं दूर निकल जाता। ये उसके दिल की आरजू है ना, एक ख्वाब है, एक तमन्ना है कि काश के मैं किसी तरह इस मुश्किल से निकल पाता और बियाबान में बसेरा करता, यानी वहां पर जाकर रहता जहां पर ऐसे लोगों से कोई लेना देना ना हो। और इस 7 आयत के आखिर पर एक लफ्ज है सिलाह। और बाज लोग पूछते हैं कि यह सिलाह के माना क्या है। इसके माना है वक्फा, लुकमा, थोड़ी देर ठहर कर जो बातें इससे पहले की गई हैं उन पर गौरो खोज करना। जब ये जबूर गाए जाते और तलावत की जाती थी और जब लफ्ज सिलाह अदा किया जाता था तो फिर वहां पर कुछ देर के लिए स्टॉप करके
वो जरा पीछे की तरफ निगाह करते और देखते कि मेरे माजी में क्या हुआ। 8वीं आयत पढ़कर फिर हम सिलाह पर आएंगे। मैं आंधी के झूके और तूफान से किसी पनाह की जगह में भाग जाता। मैं आंधी के झोंके और तूफान से किसी पनाह की जगह में भाग जाता। यह आयत मैंने इसलिए भी तलावत की, अगरचे इसका आयत नंबर 7 के साथ ताल्लुक है, लेकिन फिर 9 आयत से एक और मजमून शुरू होता है। इसलिए मैंने इस 8 आयत तक तलावत की और कुछ कहा भी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, याद रखिए कि जितने भी रूहानी सूरमा इस धरती के सीना पर रहे हैं, जितने भी रूहानी सूरमा, उन तमाम के ऐसे ही हालात थे और ऐसे ही हालात हो सकते हैं। अगर आप भी अपने आप को एक रूहानी सूरमा समझ रहे हैं और आपकी जिंदगी में हालात कुछ ऐसे ही हैं, तो आप समझें कि आप राइट डायरेक्शन पर हैं। आप गलत डायरेक्शन पर हरगिज नहीं है। एलिया के बारे में क्या ख्याल है? कितना अजीम नबी, और कैसे वो भागा इजबल के डर के मारे। और आप जानते हैं, खुदा उस पर जाहिर हुआ और कहा, ना तू ये समझता है मैं अकेला हूं? नो, मैंने तो 700-750 ऐसे रखे हुए हैं तेरे अलावा जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। लेकिन कहने का मतलब यह है, एलिया की जिंदगी में भी सेम ऐसे ही हालात थे जैसे दाऊद अपनी जिंदगी में महसूस करता था। यिर्मयाह काठ में ठूंका गया, कीचड़ के कुएं में फेंका गया। खुदा के लोगों की जिंदगियां कभी भी आसान नहीं हुई। अगर आप आज अपनी जिंदगी में तमाम फैसिलिटीज से लेस होना चाहते हैं, हो ऐसी जिंदगी जिसमें कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, then you are on the wrong side. क्योंकि खुदा के साथ चलने में प्रॉब्लम्स और रुकावटें जरूर होती हैं, और हमारे साथ ऐसे होता है। यहूदा अस्करियोती कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे हमें गिला होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर से यही कहूंगा, आए हम दाएं और बाएं नहीं, बल्कि आलमे बाला की तरफ देखें, खुदा की तरफ जो कभी हमें छोड़ता नहीं और हमसे दस्तबरदार नहीं होता, और उससे कहें, खुदाबंद आपकी रहमत और शफकत मुझसे कभी जुदा ना हो, दुनिया खा क्या ही क्यों ना करे, नो प्रॉब्लम, बट आई नीड यू ओ लॉर्ड, बी विद मी। आइए हम दुआ करें। आसमानी पिता, शुक्रगुजार हैं आज के आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावन, इस कलाम की कुदरत के वसीला से हमें फजल अनायत फरमाए कि हम दुखों और तकालीफ के रेलू और सैलाबों में जब बह रहे हों, खुदावन हम अपनी निगाहें आप पर जमाए रखें, क्योंकि जब तक हमारी निगाहें आप पर हैं तो हम डूबते नहीं हैं। जो ही हमारी नजरें आपसे हट जाती हैं,
हमारे पांव इन तूफानों के अंदर चले जाते हैं। हमारे ईमानों को मजबूत कीजिए कि हम आपकी तरफ देखते रहें। मेरे इन भाइयों और बहनों को जो मेरे साथ मिलकर इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद मैं आपके सुपुर्द करता हूं। अगर कोई है जो आज दाऊद की तरह अपने आप को महसूस करता है, एलिया और यर्मिया की तरह महसूस करता है, मुझ खाकसार की तरह महसूस करता है, और सबसे बढ़कर ये कि मुनज्जिए आलमीन की तरह, तो खुदाबंद दुआ करता हूं, मुमकिन कीजिए कि इस बुराई से आप भलाई पैदा करें और हम आपकी तरफ अपनी निगाहें लगाए रखें और आपका नाम हमारे वसीला से जलाल पाए। आज फिर खुदाबंद जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स नोट की गई हैं उनको आप जानते हैं। खुदाबंद बड़े ईमान के साथ दुआ करता हूं कि हर तरह की परेशानी, हर तरह की लानत, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। आप पीतल और लोहे के बैनू को तोड़ डालें और अपने लोगों की इस जिंदगी को गवाही का सबब बनाए, ताकि वो ये गवाही देने वाले हों कि मेरे खुदावंद ने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं। हमें बरकत दीजिए और इस कलाम को दिल में रखने का फजल अनायत फरमाए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद और नजात दहंदा यीशु मसीह के बेशकीमत नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे फिर जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदावंद की अमान में रहें। आमीन।